Assalamu alaikum. I am Dr. Haya. I welcome to all on the MMK Hub Masters of Medical Knowledge. I hope you all are fine and doing well. We are starting with the renal physiology and on which we have completed our first lecture, and this is the second lecture of the renal physiology in which we are discussing. These are the learning goals. At the end of the lecture, students must know these goals. Today हमारे पास हो जाएगी and how there is a regulation of GFR किस तरह होगी. There are the two mechanisms हैं. एक intrinsic mechanisms हैं जो GFR के अंदर ही है, means it is the glomulus के अंदर ही mechanism है. एक extrinsic mechanism है, that is outside from the kidney. Inside from the kidney there are two, myogenic and the tubuloglomerular feedback, and extrinsic में neuronal and hormonal mechanisms करेंगे. Let's start with intrinsic mechanism. So in the intrinsic mechanisms, there are the two components, myogenic mechanisms of the glomerular filtration rate and the tubuloglomerular feedback. Myogenic means in which there is muscles are involved. जब हमारे पास बीपी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो फौरन ही हमारे पास क्या होगा कि स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स होगी, जिसकी वजह से कैटाइन चैनल्स ओपन हो जाएंगे एंड डीपोलराइजेशन हो जाएगी, और साथ ही हमारे पास कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाएगा और इट कॉजेस वेजो कॉन्स्ट्रक्शन एंड फाइनली जीएफआर विल बी इंक्रीज्ड हो जाएगा. देन सेकंड मैकेनिज्म इज ट्यूब्यूलोग्लोम्युलर फीडबैक मैकेनिज्म. Tubulo means tubule से glomerulus में वापस जा रहा है. It is done by the juxtaglomerular cells. These are the juxtaglomerular apparatus. This is the specialized apparatus which lies in the nephrons में होते हैं और ये located होते हैं near the distal tubule से. They contain very important cells called the juxtaglomerular cells और ये renin को secrete करते हैं. और ये कब secrete करेंगे? When there is decreased arterial pressure. So when arterial pressure decreases, they will decrease the glomerular hydrostatic pressure decreases and finally GFR decreases. जब GFR decrease होगा तो macular densa में sodium chloride कम होगा क्योंकि sodium chloride में absorption increased हो चुकी है proximal tubule से, and it is the sensor. ये sensor है renin का कि macular densa have decreased sodium chloride. तो हमारे पास renin macular densa हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास मैक्यूला डेंसा में सोडियम क्लोराइड ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, जैसे जीएफआर कम होगा हमारे पास तो सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो मैक्यूला डेंसा कंटेन सोडियम क्लोराइड. इट इज द सेंसर कि हमारे पास रेनिन रिलीज हो, साथ ही एंजियोटेंसिन 2 को रिलीज करेंगी और इफरेंट आर्टियोल्स की कंस्ट्रक्शन इंक्रीजेस कर देंगी. ठीक है, और फिर हमारे पास अगर मैक्यूला डेंसा में सोडियम क्लोराइड कम है तो हमारे पास एफरेंट आर्टियोल्स की रेजिस्टेंस करवा देगा, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीजेस और फिर जीएफआर हमारे पास फिर ये फीडबैक स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर फीडबैक. So this is also explained by the diagrammatically कि हमारे पास लिवर से एंजियोटेंसिनोजिन रिलीज होता है, किडनी रेनिन रिलीज करती है. ये रेनिन जब एंजियोटेंसिनोजिन पर एक्ट करता है they will convert it into angiotensin 1. देन लंग्स से कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज होता है ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर देगा, एंड दिस एंजियोटेंसिन 2 एक्ट ऑन द 2 सिस्टम. CVS causes vasoconstriction एंड ऑन किडनी जिसमें सॉल्ट एंड वाटर की एब्सॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा, एंड फाइनली बीपी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा. And then there is a auto regulation occurs कि despite changes in the mean arterial pressures हमारे पास अगर from 80 to 180 mmHg renal blood flow हमारे पास kept constant रहता है, इसे हम लोग auto regulations कहते हैं. ठीक है, and then we have the extrinsic mechanism जिसमें पहला हमारे पास न्यूरल mechanism आता है. न्यूरल mechanism का स्टिमुलस हमारे पास है कि बीपी डिक्रीज होगा एंड एक्सरसाइज. जैसे बीपी डिक्रीज होगा या एक्सरसाइज होगा तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट टर्म रेगुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज बेरोरेसेप्टर्स.
दिस, ये इंक्रीज कर देते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी को विच कॉजेस इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड वेजोकॉन्स्ट्रक्शंस कहाँ, जीआईटी एंड स्किन में, एंड फाइनली अगेन वेजोकॉन्स्ट्रक्शन इन द किडनी में होगी एंड देन हमारे पास जीएफआर विल बी डिक्रीजेस, यूरिन प्रोडक्शन डिक्रीज और फिर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा एंड ऑल्सो दिस इज द नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है हमारे पास। देन हमारे पास हार्मोनल मैकेनिज्म्स है, हार्मोनल मैकेनिज्म्स में एंजियोटेंसिन 2 है और एएनपी एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स है। ये क्या करते हैं, ये एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास जो है वो जीएफआर को डिक्रीज करेगा बाय कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ बोथ एफरेंट एंड इफरेंट। अगर एफरेंट इफरेंट दोनों की कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगी या तो हमारे पास जीएफआर नॉर्मल की कंडीशन में आएगा या तो जीएफआर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एएनपी हार्मोन ये प्रेजेंट होता है हमारे पास एट्रिया के ऊपर, जब इनकी रिलैक्सेशन होगी तो ये जीएफआर को इंक्रीज करते हैं। So this is the afferent and the efferent mechanism. Afferent में क्या है कि GFR अगर increased होगा तो हमारे पास क्या होगा कि ज्यादा सोडियम क्लोराइड एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमने क्या करवाना है, एफरेंट की आर्ट्यूल्स की कॉन्स्ट्रक्शंस करवानी है एंड फाइनली GFR विल बी डिक्रीज। दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म कि अगर GFR इंक्रीज्ड है तो एफरेंट आर्ट्यूलर कॉन्स्ट्रक्शन होगी, हमारे पास क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन हमारे पास होंगी एंड फाइनली हमारे पास ब्लड फ्लो डिक्रीज्ड और फिर वेजो कॉन्स्ट्रक्शन से जीएफआर डिक्रीज एंड द अपोजिट लाइज इन द इफरेंट आर्टिकुलर कॉन्स्ट्रक्शन में उसके अपोजिट है।